ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮੈਗਨੀਫੀਸੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਟੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਚ ਟੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੁਹਾਡੇ 67 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਵਿਧੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਧੀ, ਅੱਖਰ ਵਿਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਵਿਧੀ। ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅੱਖਰ ਜੁੱਟ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਇੱਥੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਧੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ, ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ। ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਸਟ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਮੌਖਿਕ, ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਮੌਖਿਕ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਮੌਖਿਕ। ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਾਚਨ ਸਿੱਖਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਚਨ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੌਨ ਪਾਠ, ਉੱਚੀ ਪਾਠ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਾਠ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੂਹਿਕ ਪਾਠ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉੱਚੀ ਪਾਠ। ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਾਚਨ ਸਿੱਖਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ, ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਨ ਵਾਚਨ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਪੀਬੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਵਾਚਨ ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿਲਣਾ, ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਵਾਚਨ ਮੁਦਰਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਚਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ
क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 है अर्थबोध होना चाहिए है, ज्ञानबोध होना चाहिए है, अर्थबोध ते ज्ञानबोध दोवें होने चाहिए हैं, उपरोक्त सारे। तो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 अर्थबोध ते ज्ञानबोध दोवें होने चाहिए हैं। सो जे अगर थानू वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल में भी सबसक्राइब कर लो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी तरीके थोड़ी हैल्प करती रहा PS टैट के विच। सो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो तो फ्रेंड्स तक भी शेयर जरूर करो। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नाटक ते अभिनय द्वारा किस भाषा कौशल का विकास हुंदा है? लिखन कौशल, पढ़न कौशल, मौखिक प्रगटा कौशल, उपरोक्त सारे कौशल। सो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी मौखिक प्रगटा कौशल। नाटक के अभिनय द्वारा मौखिक प्रगटा कौशल भाषा का विकास होता है। ਉਹ ਕਿਹੜੀ योग्यता है जिस विच सुनना ते बोल चाल भाषा कौशलों का अभ्यास इक्को समय होता है? भाषण, वाद विवाद, गलबात, क्लास ते लैक्चर। हाँ जी राइट ऑप्शन की है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 वाद विवाद। ਉਹ ਕਿਹੜੀ योग्यता है जिस विच सुनना ते बोल चाल भाषा कौशलों का विकास इक्के समय होता है? होता है वाद विवाद विच। भाषा सीखण दा पहला पड़ाव किहड़ा है? ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। क्वेश्चन नंबर 16 ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ कि वह भाषा सीख सकेगा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ लिख सकेगा, बोल सकेगा, कुछ नहीं कह सकते। सो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जे बच्चे नूं जन्म तो ही समाज तो वखरा कर दिता जाए तो वह भाषा नहीं सीख सकेगा। ठीक है, क्योंकि समाज दे विच रह के अपने माता पिता नाल गलबात करता है तो अपने वड्डियां वडेरियां नाल गल करता है, अपने स्कूल जाता है, इस नाल भाषा सीख जाता है। अगर समाज तो ही वांझा कर देंगे तो बिल्कुल भाषा नहीं सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है भाषा सिक्ख्या विच बच्चा अपने विचारां दा आदान प्रदान किवें करता है? सुन के, पढ़ के, बोल के, सुन के, बोल के, पढ़ के अते लिख के। सो अपनी राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 भाषा सिक्ख्या विच बच्चा अपने विचारां दा आदान प्रदान सुन के, बोल के, पढ़ के ते लिख के करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है भाषा दी कार्यशाला किस नूं कहा जाता है? भाषा की कार्यशाला किसनों कहा जाता है? पुस्तक लाइब्रेरी नूं, भाषा विभाग नूं, सभ्याचारक विभाग नूं या फिर उपरोक्त कोई नहीं। सो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी पुस्तक लाइब्रेरी नूं। भाषा की कार्यशाला की होंदी है? लैंगुएज लाइब्रेरी, लैंगुएज लाइब्रेरी। ठीक है, पुस्तक हो जाएगी पुस्तकालय नूं कहंदे ने, लैबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 19 है पंजाबी भाषा प्रति प्यार पैदा करन लई अध्यापक नूं की करना चाहिए है? पंजाबी दी लगन नाल पढ़ाई करवाई जावे, अध्यापक नूं पंजाबी भाषा दा पूरा ज्ञान होवे, पंजाबी भाषा दे विद्यार्थियों नूं उत्साहित किया जावे, पंजाबी भाषा के सभ्याचार के कदरां कीमतां बारे समझाया जाए। सो अपने को राइट ऑप्शन किहड़ी होएगी? ऑप्शन तो वैसे सारियां लगभग ठीक लग रही ने, लेकिन सब तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 पंजाबी भाषा के सभ्याचार के कदरां कीमतां बारे समझाया जाए, जिस दे नाल बच्चों दे विच पंजाबी भाषा प्रति प्यार पैदा होवेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है तपशीशी ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ अर्थ कार्य है भाषा संबंधी त्रुटियां ते दोषां का पता लगाना, बच्चे का अगली क्लास विच वाधा करना, उपरोक्त दोवें, उपरोक्त कोई नहीं। सब में राइट ऑप्शन हो जाएगी फर्स्ट भाषा संबंधी त्रुटियां अते दोषां का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों के भाषा संबंधी दोषां नूं किवें लभ्या जा सकता है? निरीक्षण द्वारा, लिखती ਪ੍ਰੀਖਿਆ द्वारा, गलबात द्वारा या फिर सलाह द्वारा। सो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1 बच्चों के भाषा संबंधी दोषां नूं निरीक्षण द्वारा लभ्या जा सकता है। अगे क्वेश्चन नंबर 22 है भाषा सिक्ख्या के रस्ते विच सब तो वड्डी रुकावट
सब तो वड्डी रुकावट किहड़ी है? बच्चे भाषा विच दिलचस्पी नहीं लैंदे, अध्यापक नूं व्याकरण दे नियमां दी जानकारी नहीं हुंदी, जमात दे हरेक बच्चे दी भाषा ग्रहण शक्ति इक्को जी नहीं हुंदी, उपरोक्त सारियां। सो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी फर्स्ट, बच्चे भाषा विच दिलचस्पी नहीं लैंदे, इस करके भाषा सिक्ख्या दे रस्ते विच सब तो वड्डी रुकावट मन्नी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, होर भाषावां दे शब्द भाषा विच जोड़न नाल उस दा सरूप विगड़दा है, उचारण बदलदा है, व्याकरण शुद्ध नहीं रहिंदी, शब्द भंडार विच वाधा हुंदा है। सो जिवें कि इस क्वेश्चन का मतलब है भी जिवें होर भाषावां दे शब्द अगर आपां अपनी भाषा दे विच जोड़ लईए तां इस दे नाल की होवेगा। सो ऑप्शन तुहाडे सामने ने, आंसर तुसीं दसना है की होएगा। इस दे नाल की होएगा, शब्द भंडार दे विच वाधा हुंदा है। तत्सम शब्द किहड़े हुंदे हन? जिन्हां दा स्वरूप कुछ बदलिया हुंदा है, जिन्हां दे उचारण विच बदलाव हुंदा है, जो बिना किसी बदलाव दे होर भाषा विचों अपनी भाषा विच दाखिल हुंदे हन, या फिर उपरोक्त सारे। सो इहदा अपने कोल राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, जिन्हां दा स्वरूप कुछ बदलिया हुंदा है। सो वर्ड नूं थोड़ा जिहा चेंज कर दिंदे ने, इसनूं आपां कहंदे आ तत्सम। क्वेश्चन नंबर अगे 25 है, शुद्ध उचारण लई बच्चे नूं ज्ञान देना चाहिदा है, शब्दां दा, धुनियां दा, वाकां दा या फिर अर्थां दा। सामने का राइट ऑप्शन है धुनियां दा। शुद्ध उचारण के लिए किस दा ज्ञान जरूरी है? धुनियां दा। धुनियां दा ज्ञान सही होएगा तो भाषा अपने आप शुद्ध बोली जाऊगी, उचारी जाऊगी तो लिखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, जेकर एक जमात विच पंजाब के सारे खेतरां विचों आए बच्चे बैठे हैं तो अध्यापक पंजाबी का किहड़ा स्वरूप वरतों विच लियावेगा? ठीक है, एक जमात है उस दे विच सारे खेतरां के बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई माझी बोलता है, कोई मलवई है ना, कोई दुआबी। सो अध्यापक किहड़ा स्वरूप वरतेगा? पुआधी, दुआबी, म्यारी रूप या फिर मलवई। दसो जी किहड़ा सही होएगा? सो अध्यापक ही यूज़ करेगा, म्यारी रूप यूज़ करेगा। अगे 27 क्वेश्चन है, पंजाबी दे अशुद्ध उचारण का वड्डा कारण है। शहरी बच्चे हिंदी पंजाबी रली मिली बोलते हैं, स्कूलों विच मौखिक कारजां की घाट है, अध्यापक अंग्रेजी शब्द वधेरे बोलते हैं या फिर उपरोक्त सारे कारण ठीक हैं। सो अपने कोल है राइट ऑप्शन है, स्कूलों विच मौखिक कारजां की घाट होंदी है ना, मौखिक कार्य बहुत घट करवाए जाते हैं, लिखती तो ज़्यादा जोर दिता जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मौखिक प्रगटाव नूं स्पष्ट बनाउण लई अध्यापक नूं चाहीदा है कि वह बच्चों नूं शुद्ध लिखना सिखाए, शुद्ध उचारण सिखाए, शुद्ध पढ़ना सिखाए, इन्हां विचों कोई नहीं। सो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2, शुद्ध उचारण सिखाए, क्योंकि अगर उचारण बिल्कुल शुद्ध होएगा तो लिखना भी ऑटोमैटिकली शुद्ध हो जाएगा तो पढ़ना भी। सो क्वेश्चन नंबर 29 है, हेठ लिखियां विचों किहड़ी वधिया लिखत लई सब तो महत्वपूर्ण है? उद्देश की समझ, दिशा की समझ, तर्क की समझ या फिर स्रोतियां की समझ। सो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी स्रोतियां की समझ। क्वेश्चन नंबर 30 है, उपचार अध्यापन करवाए जाने का आधार है? विषय वस्तु, निदान, पुनर्अध्यापन या फिर पता नहीं की लिखा होया। सो अपने को राइट ऑप्शन है निदान। उपचार अध्यापन करवाए जाने का आधार है निदान। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए ने, सो वीडियो को कंप्लीट देखना, अगे भी सारे क्वेश्चन जिन्ने भी ने सारे ही रिपीटेड ने, ठीक है, PS टैट के आए हुए हैं क्वेश्चन, सो भी मैं सिलेक्ट करके थोड़े लिए लैके आई हाँ। नैक्सट है 31 क्वेश्चन, एक पैरे का मुलांकन करदियां ध्यान च रखने वाली सब तो महत्वपूर्ण विशेषता है? कल्पना, शैली, शब्दावली या फिर संगति। सो अपने को राइट ऑप्शन है संगति। एक पैरे का मुलांकन करदियां ध्यान च रखने वाली सब तो महत्वपूर्ण विशेषता है। 32 का क्वेश्चन है, सिख्यार्थियों नूं पढ़न की समझ बनाउण लई सब तो वधिया तरीका है? उन्हां नूं शब्दकोश चों औखे शब्दां दे अर्थ लभण लई आखना, उन्हां नूं चुपचाप पढ़न अते दिते गए सवालों के उत्तर देण लई आखना, उन्हां नूं पढ़ी जाण वाली सतर ते ध्यान देण लई उस हेठां ਉਂगल पेंसिल चलाउण लई आखना,
पाठ नूं उच्ची उच्ची पढ़न लई आखना। सो राइट ऑप्शन की होएगी अपनी ऑप्शन नंबर 2। उन्हां नूं चुपचाप पढ़न अते दिते गए सवालों के उत्तर देण लई आखना। ये की हो जाएगी पढ़न की समझ बनाउण लई। क्वेश्चन नंबर 33 है जी, अध्यापक लई भाषा की जमात विच विद्यार्थियों की दिलचस्पी बनाए रखने वास्ते सब तो कारगर तकनीकी होनी चाहिए है। सो किहड़ी तकनीक होनी चाहिए है? काले फट्टे की बहुत ज़्यादा वरतों करना, जद भी संभव होवे विचार वटांदरा करना, विषय नूं उन्हां दियां जीवन स्थितियां नाल संबंधित करना, बहुत सारे सवाल पूछना। सो राइट ऑप्शन की हो सकती है? अध्यापक दे लई भाषा की जमात विच सिख विद्यार्थियों लई दिलचस्पी बनाए रखने वास्ते विषय नूं उन्हां दी जीवन स्थितियां दे नाल संबंधित करना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन्हां विचों मुख रूप विच किहड़ा पाठ उच्ची उच्ची पढ़ना चाहिए है? स्वै जीवनी, कहानी, सफ़रनामा या फिर ले। सो अपनी राइट ऑप्शन हो जाएगी सैकेंड, कहानी। मूल रूप विच कहानी उच्ची उच्ची पढ़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, भाषा साहित्य सिक्ख्या का मुख्य उद्देश्य है? विद्यार्थियों की भाषाई योग्यता का विकास करना, विद्यार्थियों विच ਸਾਹਿਤਕ कौशलों का विकास करना या फिर उपरोक्त दोवें। पाठ पुस्तक के पाठां नूं चंगी तरह याद करना। सो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3। भाषा साहित्य सिक्ख्या का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की भाषाई योग्यतावां ते ਸਾਹਿਤਕ कौशलों का विकास करना है। अगे है जी क्वेश्चन नंबर 36, भाषा के लेखन विच किहड़ा बुनियादी फर्क है? लिखती भाषा की सुचेत होकर निगरानी नहीं की जाती, बोली जाने वाली भाषा कुदरती तौर पर ज़्यादा अस्थाई है, बोली जाने वाली भाषा ज़्यादा तेज़ी नाल बदलती नहीं है, लिखती भाषा तेज़ी नाल बदलती है। हाँ जी दसो जी राइट ऑप्शन की हो जाएगी? सो अपनी राइट ऑप्शन हो जाएगी बोली जाने वाली भाषा कुदरती तौर पर ज़्यादा अस्थाई है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भाषा प्राप्ति ते भाषा सिक्ख्या विच मुख्य अंतर की है? भाषा प्राप्ति ते भाषा सिक्ख्या दे विच की अंतर है? भाषा की जटिलता का, शब्द वाकां दे अर्थ का, सहजता ते सुभाविकता का या फिर भाषाई समग्री का। सो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3, भाषा प्राप्ति। भाषा प्राप्ति च भी कि आपने पंजाबी एक्वायर की हुई है, आपने इनू किते भी जाके लर्न नहीं किया, बट जी लैंगुएज आप सीखते हैं। सो यह सहजता तो सुभाविकता का इन्होंने दोवां दे विच अंतर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पाठ पुस्तकां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण तत्थां का संकलन ही हैं, क्योंकि यह विद्यार्थियों नूं अपने आले दुआले की पड़चोल का अवसर प्रदान करदियां हैं, क्योंकि यह कविता कहानी के माध्यम राही मनोरंजन करदियां हैं, क्योंकि यह प्रीख्या की दृष्टि तो महत्वपूर्ण है। सो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यह विद्यार्थियों नूं अपने आले दुआले की पड़चोल करन दा मौका दिंदियां हैं, इस करके पाठ पुस्तकां पढ़नियां जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कविता वार्तक ते नाटक नूं उच्च जमातां विच पढ़ाउण दा मूल मनोरथ है केवल ਸਾਹਿਤਕ विधावां नाल जान पछाण कराउणी, विद्यार्थियों नूं वधिया लेखक बनाउणा, ਸਾਹਿਤ पढ़ाउण दी परंपरा निभाउणा या फिर ਸਾਹਿਤਕ संवेदना नूं बनाउणा। सो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4, ਸਾਹਿਤਕ संवेदना नूं ਵਧਾਉਣਾ। सो पेशेंस बना के रखियो, हले अपने को बहुत सारे क्वेश्चन बचे जी, अराउंड 27 क्वेश्चन हले रह गए हैं जोड़े आप डिस्कस करने हैं। सो पेशेंस बना के रखियो, तो वीडियो नूं पूरा कंप्लीट जरूर देखियो। क्वेश्चन नंबर 40 है, जमात विच व्यक्तिगत भिन्नता होने के कारण की हैं? इन्हां चों आपां ने कारण लभना है। भाषा सिक्ख्या कंप्यूटर आधारित वध होनी चाहिए है, सधारण समाजिक अंतर अनुशासनी सिक्ख्या होनी चाहिए है, सॉरी अध्यापक नूं प्रमाणिक भाषा के प्रयोग पर जोर देना चाहिए है, बेजोड़ विद्यार्थियों नूं वख-वख पढ़ाउणा चाहिए है। सो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2। जमात विच व्यक्तिगत भिन्नता होने के कारण हैं सधारण समाजिक अंतर अनुशासनी।
क्वेश्चन नंबर 41 है पाठ का जटिल अर्थ समझण लई हेठ लिखियां विचों किहड़ा सब तो वध सहायक है। पाठ का जटिल अर्थ समझाउण लई उच्ची पढ़ना, चुपचाप पढ़ना, रुक के पढ़ना, विस्तार विच पढ़ना। सो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी चुपचाप पढ़ना। पाठ का जिहड़ा अर्थ समझण दे लई ना चुपचाप पढ़ना है मन दे विच, ठीक है, मौन वाचन करना है। क्वेश्चन नंबर 42 है बोल लिखत जरूरी है सिख्यार्थी दी सुनन दी योग्यता परखण लई, सिख्यार्थी दी शाब्दिक भुल ना लभण लई, सिख्यार्थी दी लिखत गति परखण लई या फिर सिख्यार्थी दी लिखाई सुधारन लई। सो अपने को राइट ऑप्शन की हो जाएगी, राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1 सिख्यार्थी दी सुनन दी योग्यता परखण दे लई बोल लिखत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 43 है सिख्यार्थियों दीयां गलतियां नूं लैके अध्यापक दी की प्रतिक्रिया होनी चाहिए है। उन्हां नूं निजी तौर ते विवरण देना, सही रूप बारे दसना, सधारण रूप विच गलती ठीक करना, विद्यार्थियों दा नां लए बिना ही जमात विच विचार वटांदरा करना। सो राइट ऑप्शन की हो जाएगी सिख्यार्थियों दी गलतियां नूं लैके अध्यापक की की प्रतिक्रिया होनी चाहिए है, विद्यार्थियों का नां लए बिना ही जमात विच विचार वटांदरा करना चाहिए है। क्वेश्चन नंबर 44 है भाषा की प्रयोगशाला का प्रमुख रूप विच इस्तेमाल किस लिए होता है। जो भाषा की लैब होंगी है उसका किस लिए यूज़ किया जाता है। सधारण तरीके नाल सिख्यार्थी की भाषा का विकास करना, भाषा पाठां नूं आसान ते दिलचस्प बनाउण लई, सिख्यार्थी नूं अपनी गलतियां लभण ते ठीक करन लई मदद, भाषा अध्यापक के काम का बोझ घट करन लई। सो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी भाषा प्रयोगशाला दे विच जो विद्यार्थी है सिख्यार्थी जिहड़े हुंदे ने अपनी गलतियां नूं खुद ही लभ के ठीक करन दा यतन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है भाषा के विज्ञान नूं कहा जाता है शैली विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, भाषा विज्ञान या फिर शाब्दिक विज्ञान। सो अपने को राइट ऑप्शन है भाषा विज्ञान। आई होप थोड़े क्वेश्चन सही हो रहे होंगे ज़्यादा तो ज़्यादा। सो क्वेश्चन नंबर 46 है उपभाषा जाति भाषा मिली जुली ते अशुद्ध भाषावां हन, कुदरती तौर ते वक्री भाषा उपलब्ध चल रही हैं, भाषा तो घट बहुत छोटियां जातियां विच बोलियां जाण वालियां विहार वजों समान परिमाप रखण वालियां अशुद्ध भाषावां किहड़ियां हुंदियां ने, ठीक है, वो दसना। 46 का अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विहार वजों समान परिमाप रखण वालियां। क्वेश्चन नंबर 46 है भाषा नूं सेध दे तौर ते वरतन दा अर्थ है प्रभाव पाउण लई जुबानी रूप का प्रयोग, प्रभाव पाउण लई भाषा के लिखत रूप का प्रयोग, भाषा नूं जीवन दीयां वखरियां स्थितियां विच वरतना, भाषा नूं स्कूल के विषय समझण लई वरतना। सो राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 भाषा नूं जीवन दीयां वखरियां स्थितियां दे विच वरतना। क्वेश्चन नंबर 48 है बस थोड़े क्वेश्चन रह गए ने, पेशेंस बना के रखियो तो वीडियो नूं कंप्लीट देखो। तीजी जमात की अध्यापिका ने पाठ पुस्तक विचों अपने सिख्यार्थियों की कहानी पढ़ी, वह अगले चरण विच सिख्यार्थी नूं की पूछेगी। कहानी विचली सिक्ख्या बारे कठिन शब्दों ते निशान लगाओ, कहानी का सार की है, कहानी विच उन्होंने की पसंद किया तो उन्होंने की आनंद माणिया। सो एक तीजी क्लास की बच्ची है वह की कहानी पढ़ रही है, ठीक है। हुण फिर टीचर उस तो की सवाल पूछा जाएगा, ऐसा टीचर तुसी की सवाल पूछोगे, ठीक है, तुसी क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है हाले इस करके उसनूं तुसी पूछोगे कहानी विच उसने की पसंद किया है तो उन्होंने की आनंद माणिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है बच्चों की मौलिकता ते सहज रचना शक्ति नूं सामने लियाउण दा अध्यापक का यतन भाषा सिक्ख्या की डैश होंदी है, जरूरत, मजबूरी, पहल या फिर चुनौती। सो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी पहल। क्वेश्चन नंबर 50 है सो अपने को बस 17 क्वेश्चन रह गए ने, पेशेंस बना के रखो तो वीडियो में कंप्लीट देखो, ठीक है। सो थोड़े बहुत हेल्पफुल होएगी क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ने सारे, ठीक है, जो कि पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन भी PS TET 2016 का है। गांधी जी अपने काम आप करते हैं, हेठां दिती सूची विचों लिखो कि तुसी अपने घर विच किहड़े-किहड़े काम करते हो। जमात
4 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है चौथी जमात के बच्चों ਨੂੰ क्यों पूछा गया है। ਉਹ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਆਪ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਉਹ ਪਾਠ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਕ ਸਰਚਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 52 है पंजाबी भाषा सीखण सिखाउण विच होण वालियां गलतियां। ठीक है, जो आप पंजाबी भाषा सीख रहे होंगे सिखा रहे होंगे किहड़ियां गलतियां हो सकदियां। ये गलतियां सुभाविक हैं, इन्हां नूं सख्ती नाल नहीं लैना चाहिए। ये असुभाविक हैं, इन्हां नूं सख्ती नाल लैना चाहिए है। अध्यापक दे अध्यापन दे सवाल खड़ा करती है, बच्चों के खराब भाषिक किरदे नूं दसदी है। सो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1। सो पंजाबी सीखण ते सिखाउण दे विच गलतियां सुभाविक हो जांदियां ने, सो इन्हां नूं सख्ती दे नाल नहीं लैना चाहिए, सगों कि प्यार दे नाल बच्चों नूं समझाउणा चाहिए है। क्वेश्चन नंबर 53 है पंजाबी भाषा का अध्यापन होने के नाते तुसी विज्ञान ते हिसाब के पाठां नूं भी सहायक समग्री के रूप में इस्तेमाल करते हो। इसका प्रमुख आधार है हिसाब के पाठ भाषा सिखाते हैं, विज्ञान के पाठ भाषा सिखाते हैं, सारी पढ़ाई विच भाषा, सारे सिलेबस विच भाषा। सो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी सारी पढ़ाई विच भाषा। 54 क्वेश्चन है 8वीं जमात के बच्चों नूं समझाते हुए तुसी किस सवाल ते सब तो वध जोर दोगे। बाजार विच की विकदा है, बाजार विच भरे मन नाल जाण दा की मंतव है, बाजार दीयां चीज़ां नूं क्यों नहीं खाना चाहिए, बाजार तो सानू की सीखना चाहिए है। सो अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगी। वैसे सारे ही क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि सारे ही क्वेश्चन ठीक लगते हैं। इस क्वेश्चन के उपर ग्रेस मार्क्स भी मिले सी, ग्रेस मार्क्स मिले सी इस क्वेश्चन के उत्ते, तो थोनों भी 1 मार्क्स ग्रेस दिता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है किसी कविता नूं पढ़ाउंदे समय तुसी किस नुक्ते ते सब तो ज़्यादा जोर देवोगे। कविता विच आए कठिन शब्दों के अर्थां ते, आप कविता की व्याख्या करने विच ठीक हाव भाव नाल कविता पाठ ते, कविता ते रचनहार दे जीवन बिरतांत ते। सो किहड़ी ऑप्शन सही हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 ठीक हाव भाव नाल कविता पाठ ते। तुसी जदों कविता पढ़ाओगे उस समय हाव भावां दे नाल कविता नूं सिखाउणा है। क्वेश्चन नंबर 56 है वाचन सिक्ख्या विच अध्यापक बच्चे नूं की सिखाउंदा है। लिखना, पढ़ना, चित्र वेखना ते समझना, धुनियां दा ज्ञान देना। सो राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 दैट इज पढ़ना। वाचन सिक्ख्या दे विच की सिखाउंदे हैं, पढ़ना वाचन सिक्ख्या दे विच। सो नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 57 भाषा सिक्ख्या विच कौशलां दी सिखलाई लई किस च सुधार होना चाहिए है। बोलन निपुणता, कौशलों की सिखलाई प्रक्रिया दौरान त्रुटियां ते दोषों का निवारण, सुनन पढ़न दोष या फिर लिखत सुलेख। सो राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2। भाषा सिक्ख्या विच कौशल की सिखलाई लई किस च सुधार होना चाहिए है, कौशलों की सिखलाई प्रक्रिया दौरान त्रुटियां ते दोषों का निवारण। क्वेश्चन नंबर 58 है भाषा अध्यापक होने के नाते हेठ लिखिया विचों किहड़ा विचार तुहाडे अनुसार सब तो महत्वपूर्ण है। भाषा का पाठक्रम समय सिर पूरा करना, भाषा की जमात नियमित रूप में लैना, विद्यार्थियों के अंकों में सुधार करने च मदद करना, विभिन्न संदर्भां च भाषा के प्रयोग लई विद्यार्थियों नूं अवसर प्रदान करना। सो राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4। नैक्सट क्वेश्चन है भाषा सीखण च वापरन वालियां गलतियां। भाषा सीखण दा कुदरती पड़ाव हैं, विद्यार्थियों की असफलता नूं दर्शाउंदियां हैं, पाठ पुस्तक की असफलता नूं दर्शाउंदियां हैं या फिर अध्यापक की असफलता नूं दर्शाउंदियां हैं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगी भाषा सिक्ख्या दा कुदरती पड़ाव है।
ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ। ਮੀਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਰੁਸਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਮੀਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 61 ਹੈ, ਬਸ 6-7 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ 60-70 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਉਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 62 ਹੈ, ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 63, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਤਰ ਅਮੂਰਤ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤਰ ਅਮੂਰਤ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰੀਖਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਵਰਨਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਧੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਮਾਹੌਲ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 66 ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਗਵਾਈ, ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਦਾਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਉਪਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਰਮ ਹੈ? ਵਾਚਨ, ਮੌਖਿਕ, ਸੁਣਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਮੌਖਿਕ, ਲਿਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਵਾਚਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਫਿਰ ਮੌਖਿਕ ਫਿਰ ਵਾਚਨ ਲਿਖਣਾ, ਮੌਖਿਕ, ਵਾਚਨ, ਸੁਣਨਾ, ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ 'ਚ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। LSRW, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। पहले लिसनिंग सुनना, फिर मौखिक, फिर रीडिंग, वाचन, राइटिंग, लिखना। सो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगी सुनना, मौखिक, सुनना हो गया लिसनिंग, मौखिक हो गया स्पीकिंग एंड वाचन हो गया रीडिंग एंड लिखना हो गया राइटिंग। LSRW सेम इंग्लिश पैडागोजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇਹੀ ਕਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ 67 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 67 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ। 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ
सो तुहानूं बहुत ज़्यादा मेहनत करन दी ज़रूरत है अगर 50 तो घट आते हैं। हाले भी तुहानूं बहुत मेहनत की ज़रूरत है। सो पीएस टैट दे विच बहुत घट टाइम रह गया। सो नैक्सट वीडियोज़ देखने के लिए मैं थोड़ी इस तरीके नाल पीएस टैट दे विच हैल्प करती रहांगी। सो प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब करो तो वीडियो को शेयर करो अपनी फ्रेंड्स तक। थैंक यू सो मच।